Namaskar and welcome to the show today. As you know, every month we try to cover a poet to get an insight into his work. And we know that there are so many such poets who deserve our attention. Normally, we would not probably bother to read, but with such programs as this, it gives us an opportunity to get an insight into other poets and great poets that we've had in our country. One such great poet that we've had rather is Kaifi Azmi. Kaifi Azmi is one of those best Urdu poets of the 20th century. He contributed not only to films through his songs, but the literature that he has left behind is also very, very significant. He believed that he could bring about change in society through the poems that he wrote. I was lucky once as a teenager to attend one of his mushairas, and believe me, it is a memory that I'll never forget. His voice, the deep sonorous voice of his reading out his own ghazals was just amazing. He's written very relevant poems and songs, and I would like to do a little brief history of his through my presentation. So I'll just put on the PowerPoint presentation right now. Yeah, can you all see this? Yeah, okay. Yes. Right. I'll just put on the slideshow. Oh, 1 second. Right. So, yeah. Kaifi Azmi, through his, he has worked so hard for the change in society, but when he used to see that things were not changing as much, through this poem, that is what he's expressed his frustration, Daira. रोज बढ़ता हूं जहां से रोज बढ़ता हूं जहां से आगे फिर वहीं लौट के आ जाता हूं बार बार बारहा तोड़ चुका हूं जिनको उन्हीं दीवारों से टकराता हूं रोज बसते हैं कई शहर नए रोज धरती में समा जाते हैं रोज बसते हैं कई शहर नए रोज धरती में समा जाते हैं जलजलों में थी जरा सी गर्मी वो भी अब रोज ही आ जाते हैं जलजलों में थी जरा सी गर्मी वो भी अब रोज ही आ जाते हैं. So you see the frustration in this poem of his. Kaifi Azmi is undoubtedly one of the greatest Urdu poets of all time. He was the one who brought Urdu literature to Indian motion pictures. Along with his contemporary poets, Pirzada Qasim, John Ilya, and others, he participated in some of the most memorable mushairas of the 20th century. At the age of 11, Azmi wrote his first ghazal, which he recited in a mushaira and received appreciation by the president of the mushaira, Mani Jaisi. He went on to write numerous ghazals, poems, and song lyrics, which are inscribed in history forever. Azmi abandoned his studies of Persian and Urdu during the Quit India agitations in 1942, and shortly thereafter became a full-time Marxist. During this period, Kaifi Azmi started to win great acclaim as a poet
and became a member of the Progressive Writers Movement of India. Later, he went to Bombay and joined Ali Sardar Jafri in writing for the party's paper, Qaumi Jang. In 1947, he visited Hyderabad to participate in a mushaira. There, he met and fell in love and married a woman named Shaukat Azmi. She later became a renowned actress in theatre and films. Azmi's first collection of poems, Jhankar, was published in 1943. As a lyricist and songwriter, though he wrote for numerous films, he will always be remembered for Kagaz Ke Phool, Hakikat, and Heer Ranja. By the way, Heer Ranja was one of the only movie probably where all the dialogues were written in rhyme by Kaifi Azmi. The whole movie is in rhyme. He was the recipient of Padma Shri, one of the Indian government's highest civilian awards. Besides, he was awarded the Uttar Pradesh Urdu Academy Award and the Sahitya Academy Award for his collection Awara Sajde. Special Award of Maharashtra Urdu Academy, Soviet Land Nehru Award, Lotus Award from the Afro-Asian Writers Association, and President's Award for National Integration. In 1998, the government of Maharashtra conferred the Gyaneshwari Award on him. He was also honored with the prestigious Sahitya Academy Award, Fellowship for Lifetime Achievement. These are some of the awards that he has won. In 1975, Sahitya Academy Award. In 2002, Sahitya Academy Fellowship. In 1970, the National Film Award for the Best Lyrics of Saath Hindustani. Filmfare Awards for 1975, Garam Hawa, and Best Story Award also for Garam Hawa. He writes, मैं कोई मुल्क नहीं हूं कि जला दोगे मुझे, कोई दीवार नहीं हूं कि गिरा दोगे मुझे, कोई सरहद भी नहीं हूं कि मिटा दोगे मुझे, ये जो दुनिया का पुराना नक्शा मेज पर तुमने बिछा रखा है, इसमें काया लकीरों के सिवा कुछ भी नहीं, तुम मुझे इसमें कहाँ ढूंढते हो, मैं एक अरमान हूं दीवानों का, मैं न मरता हूं न मर सकता हूं, कितने नादान हो तुम. He was a political activist and always wrote some very, very substantial and relevant poems. His songs in movies we know are so popular and famous. One of the best that he's written is तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो. I think one of our participants is going to read this poem, so I will not sing it for you this time. Kaifi Azmi was a rare poet who practiced what he preached. A brain hemorrhage on 8th February 1973 paralyzed him and rendered his left hand and leg incapacitated for life. Instead of giving up in despair, he decided to leave the comforts of Bombay and settle in Mijwan, the tiny village in Azamgarh where he was born in 2018. Mijwan was an obscure village untouched by development and didn't even have a pin code. Today, he is known all over the world because of Kaifi Azmi's untiring efforts to uplift the village. He set up an NGO, Mijwan Welfare Society, for the empowerment of women with a focus on the girl child. That reminds me of his song and poem on Aurat, way back in the early 60s, which described the state of affairs and how a woman is treated disgustingly in society. Unfortunately, we see that happening even today. Rape, acid burn,
and humiliation, women are still subject to that. Azmi died on May 10th, 2002. He was the recipient of the Padma Shri, one of the India's government civilian awards. And of course, we saw the other awards that he's also been awarded with. He has also been honored with a doctorate from the Vishwa Bharati University. He died in 2002. That is the little biography that I have made for him. And now we go back to our artists and to our participants, and let us listen to some of his poems. Can I call upon Nalini Popat to first give her choice of poems here? Darul Namaskar. I don't see myself, I don't know, but ma'am, you'll have to stop the screen. Yeah, okay. I'm trying to do that. Yeah. But you can hear me, right? Yes, we can hear you, but I'm not able to. I'm not able to get to the taskbar. One second. Stop sharing the screen. I think so. Yes. Okay. Yes. Thank you. Now I. Right. So Nalini, can we hear your Yeah, sure. prediction? Good evening, everybody. And Good evening. I want to, good evening. And I'm going to sing his first ghazal, which he wrote at the age of 11. I like it a lot. Yeah. So that's the, I had a I was so confused between two. His first is also very nice, where he has written about Krishna and Arjun's, like he has related it to today's world. But I thought I'll just sing this. So. इतना तो जिंदगी में किसी की खलल पड़े, इतना तो जिंदगी में किसी की खलल पड़े, हंसने से हो सुकून, न रोने से कल पड़े, हंसने से हो सुकून, न रोने से कल पड़े, इतना तो जिंदगी में किसी की खलल पड़े, जिस तरह जिस तरह हंस रहा हूँ मैं पी पी के गर्म अश्क, जिस तरह हंस रहा हूँ मैं पी पी के गर्म अश्क, यूं दूसरा हंसे तो कलेजा निकल पड़े, यूं दूसरा हंसे तो कलेजा निकल पड़े, इतना तो जिंदगी, एक तुमको फिक्र, एक तुमको फिक्र नशेबो फराज है, एक हम की चल पड़े तो बहरहाल चल पड़े, इतना तो जिंदगी
जिंदगी में किसी की खलल पड़े, मुद्दत के बाद उसने जो की, मुद्दत के बाद उसने जो की, लुत्फ की निगाह, मुद्दत के बाद उसने जो की, लुत्फ की निगाह, जी खुश तो हो गया मगर आंसू निकल पड़े, जी खुश तो हो गया मगर आंसू निकल पड़े, इतना तो जिंदगी में किसी की खलल पड़े, साकी सभी को है, साकी सभी को है, गमे तशना लबी मगर, साकी सभी को है, गमे तशना लबी मगर, मैं है उसी के नाम पे जिसके उबल पड़े, मैं है उसी के नाम पे जिसके उबल पड़े, इतना तो जिंदगी में किसी की खलल पड़े, हंसने से हो सुकून, न रोने से कल पड़े। थैंक यू, धन्यवाद। Very nice. Thank you. Very good. Nalini, if you can find the other poem also, keep it ready in case we have time. We would like to listen to that one. Yeah. The The one- first one? No, the one on Krishna you were talking about. That is first. Keep First. it ready. Okay, sure. You It's a can very have it long ready. poem. Oh, okay. Yeah, it's a long poem. We call upon Dr. Niren Very Sachdeva nice. next to share his choice with us. I know it's such a difficult thing to make a choice amongst all the beautiful songs and poems that So can you hear me? Yes, we can. Okay. Very clear, very clear. Yeah. Okay. So this somebody wrote about Kaifi Azmi के मशहूर बड़े शेर. So they have written that अगर गजल का गुलिस्ता होगा तो कैफी आजमी के बगीचे से हर फूल की खुशबू आएगी. ये उन चुनिंदा शायरों में से हैं जिन्होंने रोमानियत के साथ साथ समाज को भी अपने अशारों में लिखा. उनके लफ्ज बेहद आसानी से समझ आकर दिल में उतर जाते हैं. उन्होंने वही कहा जिससे लोगों के जहन को आवाज मिल सके. आइए पढ़ते हैं कैफी आजमी के कहे कुछ शेर. जो वो मेरे ना रहे तो मैं भी कब किसी का रहा, जो वो मेरे ना रहे तो मैं भी कब किसी का रहा, बिछड़ के उनसे सलीका ना जिंदगी का रहा. इंसान की खुश ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं, 2 गज जमी भी चाहिए 2 गज कफन के बाद. मेरा बचपन भी साथ ले आया गांव से जब भी आ गया कोई. And I think his last days he spent in his village only in Azamgarh. Yeah. Yeah. पाया भी उनको, खो भी दिया, चुप भी हो रहे. एक मुख्तसर सी रात में सदियां गुजर गईं. जो एक खुदा नहीं मिलता तो इतने मातम क्यों, मुझे खुद अपने कदम का निशान नहीं मिलता. आज फिर टूटेंगी तेरे घर नाजुक खिड़की, आज फिर टूटेंगी तेरे घर नाजुक खिड़कियां. आज फिर देखा गया दीवाना तेरे शहर में. खारो खास तो उठे रास्ता तो चले, मैं अगर थक गया काफिला तो चले. वाह.
दिल की नाजुक रगें टूटती हैं, याद इतना भी कोई ना आए। दिल की नाजुक रगें टूटती हैं, याद इतना भी कोई ना आए। जिस तरह हंस रहा हूं मैं पी पी के गर्म अश्क, यूं दूसरा हंसे तो कलेजा निकल पड़े। आई थिंक ये इन्होंने भी, नलिनी ने भी कि उसमें भी था कलेजा निकल पड़े। जी। हाँ, तू अपने दिल की जमा धड़कनों को गिन के बता, ये उसमें पिक्चर में भी था अर्थ में। तू अपने दिल की जमा धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं। अगर डूबना ही अपना मुकद्दर है तो सुनो, डूबेंगे हम जरूर मगर ना खुदा के साथ। दीवाना पूछता है ये लहरों से बार बार, कुछ बस्तियां यहाँ थी बताओ किधर गई। मैं ढूंढता हूँ जिसे वो जहां नहीं मिलता, नई जमीन नया आसमां नहीं मिलता। नई जमीन नया आसमां भी मिल जाए, नई जमीन नया आसमां भी मिल जाए, गए बशर का कुछ भी निशान नहीं मिलता। पेड़ के काटने वालों को ये मालूम तो था, जिस्म जल जाएंगे जब सर पे ना साया होगा। ब्यूटीफुल रियली। बाहर आए तो मेरा सलाम कह देना, बाहर आए तो मेरा सलाम कह देना, मुझे तो आज तलब कर लिया है सहरा ने। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या कम है जिसको छुपा रहे हो। ये भी अर्थ में था। ये आखिरी है, ये दो आखिरी हैं। जिन जख्मों को वक्त भर चला है, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो। दीवानावार चांद से आगे निकल गए, हैराना दिल कहीं पे भी तेरी अंजुमन के बाद। और ये आखिरी है कि गुर्बत की ठंडी छांव में याद आ गई उसकी धूप, गुर्बत की ठंडी छांव में याद आ गई उसकी धूप, कदरे वतन हुई हमें तरके वतन के बाद। हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल, All beautiful, all very nice. वेरी टचिंग, अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग। आपने बहुत अच्छा नरेशन किया, वेरी नाइस। सब लोग जो भी कहने वाले हैं आपने सबका एक चीज ले लिया। हाँ, एक एक निकाल लिया, सच है। Yeah, I thought it's a little different, you know. It's very beautiful. Yes. Very beautiful. He was born in 1918, and he was part of that independence struggle, and he has seen what the partition did to the country as well. So all that had affected his work and psyche, and he has brought it out very beautifully in many of his poems. Can I request Jyoti Kalra to share her choice with us? Jyoti ji. प्रणाम सभी साहित्यिक मित्रों को प्रणाम। और सजनी जी ने बहुत सुंदर भूमिका दे दी है, तो मैं बिना भूमिका के रचना पर आती हूँ। तो सुनिए। जिंदगी तो है अमल सब्र के काबू में नहीं, जिंदगी तो है अमल। एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप एक एक लाइन जो है दो बार कहें, क्योंकि मजा फिर आएगा। ठीक है, फाइन जी। जिंदगी तो है अमल सब्र के काबू में नहीं, जिंदगी तो है अमल सब्र के काबू में नहीं, नब्ज का गर्म लहू ठंडे से आंसू में नहीं, नब्ज का गर्म लहू ठंडे से आंसू में नहीं, उड़ने खुलने में है खुशबू गमे केसू में नहीं, उड़ने खुलने में है खुशबू गमे केसू में नहीं, जन्नत एक और है मर्द के पहलू में नहीं, जन्नत एक और है मर्द के पहलू में नहीं, उसकी आजाद रविश पर ही मचलना है तुझे, उसकी आजाद रविश पर ही मचलना है तुझे, जिसमें जलता हूँ उसी आग में जलना है तुझे, जिसमें जलता हूँ उसी आग में जलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, उठ मेरी जान, उठ मेरी जान, उठ मेरी जान, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, तेरे आंचल में है किरणें भी अंधेरा ही नहीं, तेरे आंचल में है किरणें भी अंधेरा ही नहीं, तुझसे रातें भी महकती हैं सवेरा ही नहीं, तुझसे रातें भी महकती हैं सवेरा ही नहीं, दिल में है अरमा भी गम का बसेरा ही नहीं, दिल में है अरमा भी गम का बसेरा ही नहीं, गम के घनघोर अंधेरे से निकलना है तुझे, गम के घनघोर अंधेरे से निकलना है तुझे, जिसमें जलता हूँ उसी आग में जलना है तुझे,
जिसमें जलता हूँ उसी आग में जलना है तुझे। उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। उठ मेरी जान, उठ मेरी जान, उठ मेरी जान, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं। रोशनी भी है तेरी आंखों में पानी ही नहीं, रोशनी भी है तेरी आंखों में पानी ही नहीं। हार तूने कभी तकदीर से मानी ही नहीं, हार तूने कभी तकदीर से मानी ही नहीं। तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं। हर अदा तेरी कयामत है जवानी ही नहीं, हर अदा तेरी कयामत है जवानी ही नहीं। अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे। उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। उठ मेरी जान, उठ मेरी जान, उठ मेरी जान, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। शुक्रिया। Wow. Beautiful. Wow, Beautiful. beautiful. Thank you. Beautiful. Very well recited also, Jyoti. Thank you. Thank you, sir. He was such a visionary, so much ahead of his times, so much for women's liberation. And he encouraged his wife, he encouraged his daughter in the film industry and in acting in those times when, women were kept under tabs. So it's really wonderful that you picked up that poem. Thank you. I hope that somebody picks up Aurat also. Nalini, if you can look out for Aurat, that song from Aurat is just fantastic. Jyoti, even if you can, just look for Aurat on Google and see if we can have time to read that. It's very, very beautiful. Let me invite Rajiv ji to share his choice. I think this, what Jyoti read was what Aurat only, isn't it? So, No, there's a song from the movie Aurat. Aurat oh, okay. Janam Diya Mardon Ko. something. Okay. That is different. Yeah. No, that That's movie different. is While this, not the Aurat movie. It was that Vajanti Mala and Dilip Kumar. Yes. Not, or name was not Aurat. song, I think, Aurat is the poem, which I think Jyoti read that one only. No, but there is another, this song. Maybe it is excerpt of that. Uth Meri Jaan is the excerpt. No, Because no. it's the feminist, this angle is shown. औरत ने जन्म दिया मर्दों को. That is मर्दों ने different. उसे बाजार दिया. It's a song. Yeah. Yes, if you can look for Vajanti it. Mala. Sorry, Yeah. Mr. Sure. Rajiv ji, sorry. Yeah. It's okay. Choice for that. Good evening, everyone. The title of this poem I'm reciting today of this great poet is Andeshe. I think it's about two lovers who are separated and the feelings therein. रूह बेचैन है, एक दिल की अजियत क्या है, दिल ही शोला है तो ये सोच ये मोहब्बत क्या है, वो मुझे भूल गई इसकी शिकायत क्या है, रंज तो ये है कि रो रो के बुलाया होगा, वो कहाँ और कहाँ काहिशी ये गम सोचिशी ये जान, उसकी रंगीन नजर और नुकुश ये हिरमा, उसका एहसास ये लतीफ और शिक्षत ये अरमा, ता अनजान एक जमाना नजर आया होगा, झुक गई होगी जवान साल उमंगों की जबीन, दब गई होगी ललक डूब गया होगा यकीन, छा गया होगा धुआं गूम गई होगी जमीन, अपने पहले ही गरौंदी को जो डाया होगा, दिल ने ऐसे भी कुछ अफसाने सुनाए होंगे, दिल ने ऐसे भी कुछ अफसाने सुनाए होंगे, अश्क आंखों ने पिए और न बहाए होंगे, बंद कमरे में जो खत मेरा जलाया होगा, एक एक हर्फ जबीन पर उबर आया होगा, उसने घबरा के नजर लाख बचाई होगी, मिट के एक नक्श ने 100 शक्ल दिखाई होगी, मेज से जब मेरी तस्वीर हटाई होगी, हर तरफ मुझको तड़पता हुआ पाया होगा,
Wow. बेमहल छेड़ पे जज्बात उबल आए होंगे, गम पशेमान तबस्सुम में डल जाए आए होंगे, नाम पर मेरे जब आंसू निकल आए होंगे, सर न कांधे से सहेली के उठाया होगा, जुल्फ जिद करके किसी ने जो बनाई होगी, रूठे जलवों पे खिसा और भी चाहिए होगी, बर्क नजरों ने कई दिन न गिराई होगी, रंग चेहरे पे कई रोज न आया होगा, क्या होगा? होके मजबूर मुझे मुझे उसने उसने बुलाया बुलाया होगा, जहर चुप करके दवा जान के जान खाया के होगा, खाया होगा। क्या बात। वो मुझे हकीकत में था ना ये गाना। हकीकत होगी, हकीकत। वो मुझे भूल गई, इसकी शिकायत क्या है, रंज तो ये है कि रो रो के बुलाया होगा। शुक्रिया। ब्यूटीफुल। क्या बात। होके मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा। Beautiful, beautiful song. ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली। It was picturized so well in Hakikat. If you हकीकत, all remember the movie yeah, by one of great, the soldiers on the border, great hit. It was very, very remembering popular. his Yeah, the first one. Yeah, beautiful song. It was. yeah. Thank you so much for reminding us of that, Mr. Rajiv. Era. Let me invite Poonam Grover. Is she here? I saw her name, I think. Poonam, are you there? I think she just left. Okay, then let me ask Bianu. Bianu Wagela. Bianu, are you there? Hello, Bianu. Yes, please. Yes, please. Yeah. वैसे तो सभी नज़्में बहुत ही उनकी अच्छी हैं, बट मैंने एक पिकअप करी है जो कि कोविड के समय हमने सबने देखा कि प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर द नेटवर्क एंड द सेटिंग एज आई एम आउट। हाथ आकर लगा गया कोई। Am I audible? Yeah, Yes, yeah. Yes, you are. हाथ आकर Request the लगा। others to please mute themselves so that the voice quality is clearer. हाथ आकर लगा गया कोई, मेरा छप्पर उठा गया कोई, लग गया एक मशीन में मैं भी, शहर में लेके आ गया कोई। मैं खड़ा था कि पीठ पर मेरी इश्तिहार एक लगा गया कोई। ये सदी धूप को तरसती है जैसे सूरज को खा गया कोई। ऐसी महंगाई कि चेहरा भी बेच के अपना खा गया कोई। अब वो अरमान है ना वो सपने, सब कबूतर उड़ा गया कोई। वो गए जब से ऐसा लगता है छोटा मोटा खुदा गया कोई। मेरा बचपन भी साथ लाया गांव से जब भी आया कोई। Can you please repeat that? ओके। अब वो अरमान है ना वो सपने, सब कबूतर उड़ा गया कोई। वो गए जब से ऐसा लगता है छोटा मोटा खुदा गया कोई। मेरा बचपन भी साथ ले आया गांव से जब भी आया कोई। Right. Beautiful. और फिल्म, उनका फिल्म सॉन्ग में मेरा बहुत ही फेवरेट है, या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको भी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते उनको कहने दो, या दिल की सुनो दुनिया वालों। Yeah, lovely. Thank you. And another perennial favorite, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, हम रहे न हम, तुम रहे न तुम, वक्त ने किया। कागज के So फूल। much. Thank you so much, Bianu. Yeah. अनुपमा एंड कागज के फूल, ब्यूटीफुल मूवी। Yes. एक और भी बहुत अच्छी है, अगर टाइम हुआ Choice तो। of songs. We will take you on again, Bianu,
It's okay. That's fine. Let everybody go. Let us once have everybody. वृंदावन जी, सरल जी आइए, आप भी अपना चॉइस प्रस्तुत कीजिए। वृंदावन जी आप अनम्यूट कीजिए, पहले सुनाई नहीं दे रहा। हाँ ठीक है। मेरी आवाज पहुंच रही है ना? जी जी अभी पहुंच रही है। ये सभी को मालूम है कि कैफी आजमी साहब एक जदीद शायर थे। ये भी कहा जाता है कि जो प्रगतिशील लेखक संघ है विश्व में, उसके खास नुमाइंदों में कैफी आजमी साहब को माना जाता है। तो जदीद शायरी है, तो मैं अपनी एक गजल उन्हीं को समर्पित करता हूँ। वो जो मेरी गजल भी जदीद है और जो उनका नेचर रहा जदीद कहने का, तो उन्हीं के लिए समर्पित है ये मेरी जदीद गजल। कि दिल पहले मतलब कुछ दो शेर सुन ले कि उम्र भर पीटे गए हैं ढोल की मानिंदा, उम्र भर पीटे गए हैं ढोल की मानिंदा, आज कोई जश्न में तो कल किसी की मौत पर, उम्र भर पीटे गए हैं ढोल, आज कोई जश्न में तो कल किसी की मौत पर। और ये शेर भी देखें कि 2 एकड़ में 10 एकड़ की फसल मिली, 2 एकड़ में 10 एकड़ की फसल मिली, मेरे घर में रोज परिंदे आते हैं, मेरे घर में रोज परिंदे आते हैं। और मुश्किलों में मुस्कुराना चाहिए, मुश्किलों में मुस्कुराना चाहिए, ये हुनर हम सबको आना चाहिए, मुश्किलों में मुस्कुराना चाहिए, ये हुनर हम सबको आना चाहिए। और जिंदगी में हो मयस्सर रोशनी, जिंदगी में हो मयस्सर रोशनी, हाथ पर सूरज उगाना चाहिए, हाथ पर सूरज उगाना चाहिए। और अब यहाँ मतलब पेश करता हूँ कि दिल अपना आबिशार किसी ने नहीं किया। ये जो जदीद शायरी करने का जो एक ढंग है, दिल अपना आबिशार किसी ने नहीं किया, सूखी नदी से प्यार किसी ने नहीं किया, दिल अपना आबिशार किसी ने नहीं किया, सूखी नदी से प्यार किसी ने नहीं किया। और जरदारियों में दब गए सच्चे रिवाज और रस्म, जरदारियों में दब गए सच्चे रिवाज और रस्म, ये बोझ दरकिनार किसी ने नहीं किया, ये बोझ दरकिनार किसी ने नहीं किया। और दौलत के रेगजार में भटके तमाम लोग, दौलत के रेगजार में मरुस्थल में, दौलत के रेगजार में भटके तमाम लोग, किरदार आबदार किसी ने नहीं किया। और बतौर खास ये शेर देखे जो बहुत मतलब मेरा शेर लोगों ने बहुत प्रसिद्ध कर दिया कि कच्चे फलों से छीन ली। सजनी जी कृपया ये शेर जरूर ध्यान से सुने। कच्चे फलों से छीन ली जीने की आरज़ू, कच्चे फलों से छीन ली जीने की आरज़ू, मौसम का इंतजार किसी ने नहीं किया, मौसम का इंतजार किसी ने नहीं किया। कच्चे फलों से छीन ली जीने की आरज़ू, मौसम का इंतजार किसी ने नहीं किया। और इस दौरे नौ में झूठ को सब अजमतें मिली, इस दौरे नौ में झूठ को सब अजमतें मिली, सच्चाइयों से प्यार किसी ने नहीं किया, सच्चाइयों से प्यार किसी ने नहीं किया। और गैरों के दिल फरेब फसानों के सामने, गैरों के दिल फरेब फसानों के सामने, अपनों पे एतबार किसी ने नहीं किया। क्या बात है, क्या अपनों पे, गैरों के दिल फरेब फसानों के सामने, अपनों पे एतबार किसी ने नहीं किया। और इसका मक्ता देखें कि एक ये भी ध्यान से सुने
एक मेरी रूह मेरे मुकाबिल है बस सरल, एक मेरी रूह मेरे मुकाबिल है बस सरल, मुझको जलीलो ख्वार किसी ने नहीं किया, मुझको जलीलो ख्वार किसी ने नहीं किया, एक मेरी रूह मेरे मुकाबिल है बस सरल, मुझको जलीलो ख्वार किसी ने नहीं किया, दिल अपना आबशार किसी ने नहीं किया, सूखी नदी से प्यार किसी ने नहीं किया, कच्चे फलों से छीन ली जीने की आरज़ू, मौसम का इंतजार किसी ने नहीं किया, मौसम का इंतजार किसी ने नहीं किया। ये मेरी पूरी गजल उनके लिए समर्पित है, कैफी आजमी साहब को। और कैफी आजमी साहब जैसी शख्सियत, हजारों साल नरगिस जब अपनी बेनूरी पे रोती है, चमन में तब कहीं होता है पैदा एक। सही है। भैया बहुत आपने कहा सुंदर, बेटा बहुत सुंदर। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या बात, क्या बात। सरल जी एक आप ही हैं जो कवियों पे कविताएं लिखते हैं, और हम वी आर वेरी लकी टू हैव यू अमंगस्ट अस, रियली। थैंक यू सो मच, वंडरफुल। लेट मी इनवाइट विजय शर्मा जी नेक्स्ट with his choice. आप सबको मेरा नमस्कार। मैं विजय हांगकांग से आपके मुखातिब हूँ, और मैंने कैफी साहब की एक बहुत ही जो मेरे दिल को छू गई वो गजल नज्म जो भी है पढ़ रहा हूँ, और इसका अनुमान है मैं ढूंढता हूँ जिसे वो जहां नहीं मिलता। जी जी। मैं ढूंढता हूँ जिसे वो जहां नहीं मिलता, मैं ढूंढता हूँ जिसे वो जहां नहीं मिलता, नई जमीन नया आसमान नहीं मिलता, नई जमीन नया आसमान नहीं मिलता, नई जमीन नया आसमान भी मिल जाए, नई जमीन नया आसमान भी मिल जाए, नए बशर का कहीं कुछ निशान नहीं मिलता। नए बशर यानी कि ह्यूमन बीइंग, इंसान। नई जमीन नया आसमां भी मिल जाए, नए बशर का कहीं कुछ निशान नहीं मिलता। वो तेग मिल गई जिससे हुआ है कत्ल मेरा, वो तेग मिल गई जिससे हुआ है कत्ल मेरा, किसी के हाथ का उस पर निशान नहीं मिलता, किसी के हाथ का उस पर निशान नहीं मिलता। वो मेरा गांव है, वो मेरा गांव है, वो मेरे गांव के चूल्हे कि जिनमें शोले तो शोले धुआं नहीं मिलता। क्या बात है। वो मेरा गांव है, वो मेरे गांव के चूल्हे कि जिनमें शोले तो शोले धुआं नहीं मिलता। जो एक खुदा नहीं मिलता तो इतना मातम क्यों। निरंजन जी ने कहा था ये कि जो एक खुदा नहीं मिलता तो इतना मातम क्यों। यहाँ तो कोई मेरा हम ज़बान नहीं मिलता, यहाँ तो कोई मेरा हम ज़बान नहीं मिलता। खड़ा हूं कब से, और खड़ा हूं कब से मैं चेहरों के एक जंगल में, खड़ा हूं कब से मैं चेहरों के एक जंगल में, तुम्हारे चेहरे का कुछ भी यहाँ निशान नहीं मिलता। खड़ा हूं कब से मैं चेहरों के एक जंगल में, तुम्हारे चेहरे का कुछ भी यहाँ नहीं मिलता। और मैं ढूंढता हूं जिसे वो जहां नहीं मिलता, नई जमीन नया आसमान नहीं मिलता। शुक्रिया। Very nice. आपने बहुत अच्छी तरह से रिसाइट किया इसको। Yeah, the Very nice. recitation was so I good. think he can recite verse very well. You Yeah. can, because आपकी आवाज में जो जोर है ना वो उसमें चाहिए, उस पोएम के लिए। We will do one session on Thursday. Definitely. Vijay ji, you were going to sing a few lines of songs as well? Yeah, sure. If you allow me, please. Thank you. Yeah, sure. Why not? उनके जो गाने हैं
वक्त ने किया क्या हसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया क्या हसी तुम इतना जो मुस्कुरा रहे। मैं खाली मुखड़े ही आपको कर सकूंगा क्योंकि जी जी जी। उतना समय भी नहीं मिलेगा। अगर आप कहें तो मैं एक गाना पूरा भी गा सकता हूँ, जैसा आपका मर्जी हो। नहीं, आप मुखड़े गाइए प्लीज, जी जी। क्योंकि तुम गाने इतना से जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। और इसी फिल्म से तीसरा गाना है, कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, वो जो अपना था वही और किसी का क्यों है, यही दुनिया है तो फिर ऐसी ये दुनिया क्यों है, यही होता है तो आखिर यही होता क्यों है। Thank you so much, Vijay ji. That was really nice. थैंक यू। And each of his songs, I think, in the movies are just absolutely great. जी जी जी। And when composed by Madan Mohan ji, they touch a absolutely superlative level. एक लास्ट जो मेरे बहुत दिल के करीब है और नीलन जी ने भी कहा था, इसकी एक लाइन कहे तो प्लीज मुझे अलाउ कीजिए। जी। दिल की नाजुक रगें टूटती हैं, दिल की नाजुक रगें टूटती हैं, याद इतना भी कोई न आए, सोचा तो आंसू भर आए, सोचा तो आंसू भर आए। बहुत सुंदर गाया आपने। थैंक यू, थैंक यू There's वेरी a मच। long list of songs, I'm sure each one of us has a list of favorite songs. I'll just recite two which just come to my mind. One is Hakikat's Zara Si Ahat. होती है। Zara si आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं. And the other one is Anupama's कुछ दिल ने कहा कुछ जी। भी नहीं, कुछ दिल ने सुना कुछ भी नहीं. Beautiful, beautiful. I love that song. Yeah. So, yeah, कुछ दिल ने कहा. One more, बेताब दिल की तमन्ना यही है. Oh yeah, that is so beautiful too. We still have one participant, Narendra ji.
नरेंद्र चावला जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? आइए प्लीज अपनी सिलेक्शन सुनाइए। नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम अमेरिका। अभी अभी हमारा दिन निकला है और मैं सोच रहा था कहीं मैं डिले तो नहीं हो गया, तो जी, मैं हाँ जी, ज्यादा समय ना लेता हुआ मैं भी, क्योंकि बगीचे में तो हम बार बार जाते हैं और वही फूल होते हैं तो हमें फिर दोबारा देख करके आनंद आता है। तो कैफी आदमी के बगीचे की सैर मैं आज करवाऊंगा। कुछ कुछ तो सबने कर लिया है, लेकिन मैं एक बार फिर कराऊंगा, वो मेरी कुछ तरन्नुम से और कुछ बिना तरन्नुम के। जी, उम्मीद है पसंद आएगी। कोई कोई पैदा होता है जहां में ऐसा हर दिल अजीज आदमी। कोई कोई पैदा होता है जहां में ऐसा हर दिल अजीज आदमी, जो कल्म से उतर जाए सबके दिलों में, वो है कैफी आजमी। क्या बात, क्या बात। जो कलम से उतर जाए सबके दिलों में, वो है कैफी आजमी। आइए चलकर आज करें उनके रंगीन बगीचे की सैर, जिसमें खिला हुआ हर गुल मांग रहा है खुदा से सबकी खैर। देखिए पहला फूल शर्मा शर्मा कर क्या कह रहा है। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। तुम्ही को दिल का राज बताए, तुम्ही से राज छिपाए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। और नाइस। देखिए वो मुस्कुराते हैं और हमें ऐसा लगता है जैसे कुछ छुपा रहे हैं। कुछ ऐसे फूल हैं हवा में झूम रहे हैं। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो। जिन जख्मों को वक्त भर चला है, जिन जख्मों को वक्त भर चला है, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो। ये देखिए दूसरे फूल की डालियां झूम झूम कर क्या कह रही हैं बगीचे में। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं। अरे वाह, इन फूलों की खुशबू तो कुछ और भी खूब है। तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा, सफर एक उम्र का पल में तमाम कर लूंगा। आहा, देखिए ये क्या हो रहा है। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी है। ओहो, ये कुछ फूल तो कांटों से घिरे हुए हैं। इनकी तो शान ही निराली है, कांटों से घिरे हुए फूल।
मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, इसी तरह से बसर हमने जिंदगी कर ली, मिले न फूल। अब कैफी आदमी जी की उदासी का मंजर देखिए, क्या जाने किसकी प्यास बुझाने किधर गई, क्या जाने किसकी प्यास बुझाने किधर गई, इस सर पे झूम के जो घटाएं गुजर गई। कुछ बस्तियां यहां थी वो किधर गई, कुछ बस्तियां यहां थी बताओ किधर गई, वीरानियां तो मेरे दिल में उतर गई। पैमाना टूटने का कोई गम नहीं मुझे, पैमाना टूटने का कोई गम नहीं मुझे, गम तो ये है कि चांदनी रातें बिखर गई। और आखिर में कैफी आजमी का मुझे जो शेर अच्छा लगा, मैं ढूंढता हूं वो जहां नहीं मिलता, नई जमीन तो नया आसमान नहीं मिलता। और अब हम बगीचे से बाहर आ रहे हैं, लेकिन उदासी की दुनिया से, उदासी की दुनिया में देखिए क्या कहते हैं, ये तो मैं जितना गाऊं उतना ही आनंद आता है। ये दुनिया, ये दुनिया किसी काम की नहीं, किसी काम की नहीं, महफिल ये महफिल दुनिया, ये दुनिया किसी काम की नहीं, किसी काम की नहीं। शुक्रिया। वेरी गुड, एक्सेलेंट, मजा आ गया नरेंद्र जी, मजा आ गया। क्या चॉइस थी, बड़ी बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। है ही एक से एक बढ़कर गाने कैफी आजमी के, हम क्या गाएं और क्या छोड़ें, यही एक परेशानी होती है जब कैफी आजमी का नाम आता है। तो अब हमारे बहुत सारे जो विजिटिंग ये हैं, गेस्ट हैं, अगर उन्हें कुछ कहना हो तो, किसी को कुछ फरमाना हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। अजय जी, पूनम जी, सुधा। हाँ हेलो हेलो बहन जी। चावला जी, मैं यही कह रहा था कि चावला जी ने तो पूरी कैफी साहब की जो है उन्होंने पूरी गाथा उन्होंने बता दी। बहुत बहुत बड़े अच्छी सिलेक्शन, हाँ ऑल सिलेक्टेड जो भी उनके थे। तो थैंक यू चावला जी, आप वेरी नाइस टू सी यू, एंड ऐसे ही आप हमारे महफिल में आते रहा करो। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हाँ, वो आपका। हाँ, बहुत जो लास्ट में आपने गाना, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, लेकिन भाई साहब ये हमारे महफिल ही काम की है, ये दुनिया। हाँ अब वो कैफी साहब के टाइम की बात नहीं, है। महफिल दुनिया काम की नहीं है, लेकिन लेकिन महफिल में महफिल काम जाकर हम अपनी दुनिया बसाते हैं, वो काम हाँ, की हो जाती है। हाँ काम जी की हो जी, जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। कमल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ हाँ मैडम, मैं भी जब कुछ वैद्य जी देखो करना हमारे चाहती कितने हूँ। इंटेलिजेंट और वो हैं। बहुत ही एक से एक बढ़िया। पोयम उनको। हाँ जी, हाँ जी, कमल जी कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ जी। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। मैं जो कहना चाहती थी, मैं ढूंढता हूँ जहाँ, वो तो शर्मा जी ने कह दिया है, तो उसके बजाय मैं दूसरी कोई रचना आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। जरूर जरूर, प्लीज पेश कीजिए। ठीक है। सभी भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। उर्दू के बेहतरीन शायर, गजलकार, गीतकार जनाब अख्तर हुसैन रिजवी, जिनको
कैफी आजमी के नाम से जाना जाता है। आप अपनी काबिलियत से जमाने की रुख को मोड़ने की ताकत रखते थे। आजमी साहब एक ऐसे शायर जिन्होंने उर्दू शायरी को हिंदी सिनेमा के जगत में पॉपुलर किया है। इन्हें कई पुरस्कार मिले हैं जिसकी चर्चा बहन जी ने की है। वैसे तो मैं ढूंढता हूँ जिसे ये पढ़ने वाली थी, परंतु भाई साहब ने कह दी है तो समय पर मैंने दूसरी उनकी रचना को यानी ले लिया है। आजमी साहब यथार्थ को प्रस्तुत करने वाले एक बहुत सुंदर शायर है, जिन्होंने डेवलपमेंट के नाम पर क्या क्या चलता है इस पर कुछ अपने विचार एक रचना में प्रस्तुत किए हैं। अपने बचपन में हमने अपने गांव में गलियों में पहाड़, नदियां, जंगल ये सारा देखा है, परंतु आज ये सारा नजारा देखने को नहीं मिलता। शहरों में डेवलपमेंट हो रही है, पहाड़ के पहाड़ टूट रहे हैं, जंगल के जंगल तोड़े जा रहे हैं और एक प्रकार से अपने इस प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने का एक ये संतुलन बिगड़ता जा रहा है, जिसका परिणाम हमें सभी को भुगतना पड़ता है। तो इस बात को आजमी जी ने एक शायरी में प्रस्तुत किया है जो मैं पढ़ने जा रही हूँ। शोर यूं ही न परिंदों ने मचाया होगा, शोर यूं ही न परिंदों ने मचाया होगा, कोई जंगल की तरफ शहर से आया होगा, कोई जंगल की तरफ शहर से आया होगा। पेड़ के काटने वालों को ये मालूम तो होगा, पेड़ के काटने वालों को ये मालूम तो होगा, जिस्म जल जाएंगे जब सर पे न साया होगा, जिस्म जल जाएंगे जब सर पे न साया होगा। बानिए जश्न बहारों ने सोचा भी नहीं, बानिए जश्न बहारों ने सोचा भी नहीं, किसने कांटों को लहू अपना पिलाया होगा, किसने कांटों को लहू अपना पिलाया होगा। बिजली के तार पर बैठा हुआ तन्हा पंछी, बिजली के तार पर बैठा हुआ तन्हा पंछी सोचता है वो जंगल तो पराया होगा, सोचता है कि वो जंगल तो पराया होगा। यहाँ हम देखते हैं डेवलपमेंट कैसी हो रही है। अपने जंगल से जो घबरा के उड़े थे प्यासे, अपने जंगल से जो घबरा के उड़े थे प्यासे, हर शराब उनको समंदर नजर आया होगा, हर शराब उनको समंदर नजर आया होगा। इस प्रकार की इस भावना को उन्होंने अपनी इस रचना में प्रस्तुत किया है। कितने पहले लिखी हुई ये रचना है, परंतु जिसका प्रभाव आज हम पर सब पर दिखाई देता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। बहुत ही बेहतरीन थी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। समय पर मुझे थोड़ा गड़बड़ी में दूसरी चॉइस करनी पड़ी, नहीं तो मैं कोई बात नहीं, ये मैं पहले चॉइस आपने कोई बात नहीं। भाई साहब ने, शर्मा जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से वो सुनाई है, इसलिए आनंद भी आ गया। धन्यवाद। जो आपने कही वो भी बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही उम्दा थी। थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया। So that brings me to the end of today's program. I hope you all enjoyed it. We did have a good choice of Kaifi Azmi's poems, but there is so much more. There is so much more to the man and his work. So please keep looking at it, keep getting your insights into it, and we will meet again next time after 2 weeks. All the best. Be happy. Thank you so much for your Thank you, Sajni. Thank you so much. Thank you very much. For this lovely get together. Lovely महफिल. Thank you. जाते जाते जहान दिल की हुकूमत तुम्हें मुबारक हो, जहान दिल की हुकूमत तुम्हें मुबारक हो, और रही शिकस्त तो वो अपने नाम कर लूंगा। वाह 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 वाह, क्या बात है। बहुत अच्छा। Thank you. Thank you. Enjoy it tonight. Yes. Thank you very much. Okay. Thank you so much.
Archana? Ma'am, Feroz is host. I'm asking him to close the meeting. Okay. Ma'am, you can leave. We will edit this part. All right. Bye.